सो जैसे ही आप उसमें पानी डालते हो तो लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज सॉलिड आसपास में बहुत फ्रिक्शन रखते हैं. सॉलिड्स, टू सॉलिड्स कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट विद each other because of the compaction. So once you start adding the water, that water molecule make a lubricating effect between both of the solid so that they can be get compacted with each other. वो कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, आसपास में पास में आ सकते हैं. तो इनिशियल जब आप वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, इनिशियली when water content increases, lubrication increases, hence आपका गामा डी क्या करता है, इंक्रीज करता है. क्योंकि जैसे ही लुब्रिकेशन आएगा सॉलिड आपस में जगह से हिलेगा. भाई दो सॉलिड आपस में ऐसे घसघसा के बैठे हैं बिकॉज दे हैव द वेरी हैवी फ्रिक्शन. नाउ इफ समबडी विल पुट वाटर इन बिटवीन दिस, दे कैन एटलीस्ट मूव. जैसे कि आप समझ लीजिए कि देयर इज अ लैच इन अ डोर that has been stuck due to the corrosion. What you will put, some oil you will put. आप उस कंडे में थोड़ा सा पानी डालेंगे या ऑयल डालेंगे, it will become little smoother. तो वो lubrication effect इम्पार्ट करता है. बट आप ऐसा भी तो नहीं है ना कि उसके ऊपर आप पूरा मतलब बाल्टी भर के तेल डाल देंगे. There will be some limit, some drops you will require. So after, if you put that much of the oil, then also it will not work. अब इसको समझते हैं बहुत ही यूनिक चीज से. Have you ever seen in the case of दिवाली के सीजन में आपने घर में कभी भी लड्डू बनते हुए देखा होगा? ये बिल्कुल सेम वही चीज है, आप सुनिएगा ध्यान से. होता क्या है, what we have to prepare a complete raw material of that लड्डू. हमने लड्डू का एक पूरा complete raw material रेडी कर रखा है, जिसमें आटा हो गया, बादाम हो गया, जिस भी चीज का आप बनाना चाह रहे हैं, गुड़ हो गया, सिकावा आटा हो गया, जो भी चीज का लड्डू बन रहा है, that things are there. Now what will happen? Your mother will say कि बेटा इसमें घी डालो और इसको लड्डू बनाना चालू करो. So the ghee is the water content. So once you increase, because तब तो बिल्कुल सूखा आपके पास में, initially that entire dry raw material is there. You cannot make the laddu in between because they are having a lot of friction. They cannot make any bond over there. तो आपने पानी डाला, means घी डाला. What ghee will start? Ghee will impart some lubrication in between that solid particles. And once you take that ghee and you will start compacting in this way. आप इस तरह से उसको compact करना चालू करेंगे. In this way, if you start compacting, the solid will start coming closer to each other. और वो धीरे लड्डू बनके तैयार हो जाएगा. There is a optimum amount of ghee. आपको कम लग रहा है, थोड़ा और डाल दो, और कम लग रहा है और डाल दो. Just imagine if you add lot of ghee in that, then what will happen? वो flow करने लग जाएगा. In fact, even you will get, sir, आपने ये भी चीज नोटिस की होगी. You might have noticed this thing also that let us say there is a laddu which has been prepared by optimum moisture ghee. आपने optimum घी डाल दिया और आपने लड्डू बना के रख दिया और आपने प्लेट पे रख दिया. और एक आपने लड्डू बनाया जिसमें थोड़ा ज्यादा घी डाल दिया. Let us say beyond this range if you have added the ghee, then what will happen? उस समय तो वो compact हो जाएगा. But next day morning if you see ना, that complete thing has been settled down. वो लड्डू बिखरा मिलेगा आपको अगले दिन सुबह. किसी ने नहीं खाया फिर भी बिखरा मिलेगा. Because that extra ghee is now not imparting the lubricating effect. अब वो lubrication नहीं कर रहा है. तो वो जो extra ghee है जो lubrication नहीं कर रहा है, now what it will do? It will break the bonding between the solid. वो solid को break करके अंदर घुसेगा और फाड़ के रख देगा. तो entire compaction which you have achieved is now lowering down. जो आपने गामा डी मैक्स सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टेक्ट से लिया है वो सारा बिखर गया. द एंटायर गामा डी मैक्स हैज बीन गॉन. सो अप टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट lubrication will increase and gamma D will increase. So I can say at W is equal to OMC, maximum lubrication आ गया. maximum lubrication आ गया and you achieve the gamma D value as gamma D max. लेकिन जब आपने पानी और बढ़ाया, मींस मोर देन OMC किया, नाउ लुब्रिकेशन इज नॉट देयर, नो लुब्रिकेशन. अब लुब्रिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा? लुब्रिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा? दिस घी विल टेक द स्पेस इन द वॉइड्स. वो सॉलिड को धक्का मार के बीच में घुस जाएगा. क्लियर है? एंड इट विल डिस्टर्ब द डेंसिटी ऑफ द सिस्टम. जैसे क्लास में 100 सीट है, जब तक वो 100 सीट भरती है तब तक मेरी डेंसिटी बढ़ती है. मतलब मेरा पैसा आ रहा है और मेरे को मजा आ रहा है कि स्टूडेंट आ रहे हैं. आई एम एंजॉइंग दैट. If one by one people are coming, but once the entire 100 seat will be filled, now even that 101 is coming. In fact, he is giving me money. मुझे मजा आ रहा है उसके साथ, पैसा भी दे रहा है, मेरे स्टूडेंट भी बढ़ रहा है,
लेकिन मेरे पास तो 100 ही सीट है, अब कहां बिठाऊंगा उसको? That one additional person will disturb my class continuously. क्यों? क्योंकि वो बेंचेस ढूंढेगा कहाँ है। और लेट अस से इन माय इंस्टीट्यूट आई हैव पुट द बेंचेस ऑफ वो 3 वाली ग्रुप वाली बेंच नहीं आती, 1 2 3 एक साथ बैठ सकते हैं इस पे। मान लो मैंने वो 3 वाली बेंचेस दे रखी है और ऐसे करके सारी बेंचेस पे बच्चे बैठे हुए। नाउ दैट एक्स्ट्रा 2 people will disturb all of them. Bro, उधर खिसकना, उधर खिसकना, उधर खिसकना। And what will happen? Somebody will sit here, the next one will be fallen down. वो जो आपने हेरा फेरी मूवी में देखा होगा, कार में बैठते हैं, 2 लोग इधर से बैठते हैं, उधर से 10 लोग गिर जाते हैं। सेम केस विल हैपन। तो अब जो एक्स्ट्रा पानी है इज नॉट गोइंग टू गिव यू लुब्रिकेटिंग इफेक्ट। अब वो लुब्रिकेशन नहीं दे रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ व्हाट विल हैपन? द वाटर, यही चीज हमने कंक्रीट में भी पढ़ी थी, एक्स्ट्रा पानी पोरोसिटी बढ़ा देता है, बस वही चीज है। लुब्रिकेशन इज नो लुब्रिकेशन। नाउ एडिशनल वाटर, नाउ एडिशनल वाटर break bond of solid, break bond of solid, hence gamma d decreases। इसलिए गामा डी क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर वो ऑनलाइन आ जाएगा। कौन? हमारे तो गड़बड़ हो गई, हमारे साथ तो ऐसा होता ही नहीं है। हमारे साथ तो कहानी अलग है। हमारे तो ऑनलाइन वाले भी आजकल अटेंड नहीं करते लाइव क्लास। अपने साथ पता नहीं क्या गड़बड़ है, ऑनलाइन वाले भी लाइव क्लास अटेंड नहीं करते। समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। अरे क्या बोले तो बोले क्या, पता नहीं लोग क्या सिचुएशन है, समझ ही नहीं आती। देखो यार एक चीज बताता हूँ मैं आपको, आप सभी लोग ना 10वीं पास हो चुके हो, यू ऑल आर 10th पास। तो स्कूल वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए अब अपने को, बड़े हो गए ना। अब आप ना मैच्योर वाली हरकतें करो यार, बड़ी वाली हरकतें करो। ये छोटी मोटी हरकतें क्यों करते रहते हो? क्लास नहीं आ रहे हैं, नाराज हो गए तो क्लास नहीं आ रहे हैं, सर ने डांट दिया तो लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे, सर ने कुछ पढ़ने को कह दिया, क्लास में आपको कुछ कह दिया, ये नहीं आता वो नहीं आता आपको, तो लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे। ये सब क्या है? और जैसे स्कूल में नहीं करते थे, स्कूल में नहीं करते थे, किसी को मान लो आप किसी से सर ने क्वेश्चन पूछ दिया क्लास में, हाँ खड़ा हो भाई 4 का पहाड़ा सुनो, और वो और नहीं आया और उसको डांट दिया, तो पीछे सब लोग तेरे को नहीं आया, तेरे को नहीं आया। स्कूल में करते थे सब यार। अभी बड़े हो गए हम लोग, अभी शादी होने वाली है आप सब लोगों की, कई लोगों की तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है क्लास में। तो अभी ठीक है यार, ये छोटी मोटी चीजें छोड़ दो, भी मैच्योर। एक बार सोचो ना कि एक कोई आर्मी का पर्सन इस तरह की हरकतें करे तो क्यों तेरे को गोली लगेगी, मजा आया मजा आया। किड्स यूज्ड टू डू दिस, वी ऑल आर नॉट किड। और मुझे मजा आया, तेरे को सर ने डांटा, सर ने डांट दिया तो अब मैं क्लास में नहीं आऊंगा, मैं नदी मदाबाज बन जाऊंगा, लाइव क्लास अटेंड नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्या मजा आ रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ हमने कह दिया। मतलब कभी पापा ने आपसे कुछ डांट दिया, पापा से नाराज हो के घर में ही नहीं घुसोगे क्या? ये क्या बात हुई? तो ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, बच्चे नहीं हो आप। किसी की थोड़ी कर रहे हैं, इंसल्ट करने के लिए थोड़ी ना कोई आप यहाँ पे पढ़ रहे हो कि चलो मेडीसी चलते हैं, सब लोग इंसल्ट करेंगे, सारे सर इंसल्ट करेंगे, मजा आएगा, इंसल्ट हो रही मजा आएगा, ऐसे थोड़ी होता है।
कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाने से क्या फायदा हुआ। ये लाइन ऑफ सैचुरेशन तो आपको समझा दी मैंने, ये तो समझा दिया। अब मैं इसी जगह पे दूसरा एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ इसी कर्व के साथ। विद द सेम कर्व आई एम टेकिंग द वन मोर कॉन्सेप्ट। व्हाट विल हैपन इफ आई इंक्रीज द कॉम्पैक्शन एफर्ट। व्हाट विल हैपन इफ आई इंक्रीज द कॉम्पैक्शन एफर्ट। तो देखते हैं कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाने से क्या होगा। लाइक इंस्टेड ऑफ दिस एसपीटी, लेट अस से दिस कर्व इज फॉर एसपीटी। मान लेते हैं ये कर्व एसपीटी है, ये कर्व स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए या लाइट वेट के लिए मान लेते हैं। नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग फॉर सर हम बीटेक किए 2020 में, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्या फर्क पड़ता है सबके, देखो सब लोगों के एक माँ के 4 बेटे करके कोई फायदा नहीं है। मेरे डांटने से, मेरे कुछ कहने, सॉरी ये बात कर रहे हैं कि ड्राई डेंसिटी, ये दिस इज द ड्राई डेंसिटी इन केस ऑफ एसपीटी टेस्ट। इन केस ऑफ एसपीटी टेस्ट, तो ये है एसपीटी टेस्ट, ये है एसपीटी टेस्ट। अगर मैं इसी की जगह मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट कर दूं, इसका मतलब मैंने क्या किया, कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ा दिया। इफ आई इंक्रीज द कॉम्पैक्शन एफर्ट देन व्हाट विल हैपन, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन कॉम्पैक्शन एफर्ट द ब्रेक्स विल गेट द बॉन्डिंग विल गेट ब्रेक वेरी सून। यही जो बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है यहाँ आने के बाद, ये और जल्दी ब्रेक हो जाएगी, या आपकी ड्राई डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर आपकी ड्राई डेंसिटी और भी जल्दी इंक्रीज कर गई तो दैट इज व्हाट अ बेनिफिट ऑफ, ये आपका ओएमसी हो गया किसके लिए, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए। दिस विल बी द ओएमसी फॉर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट एंड दिस विल बी द गामा डी मैक्स फॉर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, एंड द कर्व विल बिकम लाइक दिस, एंड द कर्व विल बिकम लाइक दिस। ये आपका एमपीटी के लिए कर्व हो जाएगा, एमपीटी के लिए कर्व हो जाएगा। एमपीटी के लिए कर्व क्या हुआ, द गामा डी हैज बीन इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन एफर्ट, because if you increase the compaction effort the flocculent structure will convert into the dispersed structure very soon. flocculent structure कैसे थे, इस तरह के mismanaged flocculent structure थे। these are the mismanaged flocculent structure, these are the mismanaged flocculent structure was there in the clay. now once you compacted it they will became into the manners। जैसे ही मैंने आपको डाटा, आप manners से क्लास में बैठने लगते हैं, ये manners से क्लास में बैठने लगते हैं। so this dry density will be achieved if you put more compaction effort। अगर आप अपनी जिंदगी में भी एफर्ट ज्यादा डाल दोगे तो आपको कम समय में बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। ओनली यू नीड टू इंक्रीज द एफर्ट। बट ऐसा नहीं है कि आप इसमें और कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाते जाओ तो सेम अमाउंट से इंक्रीज करता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए इट इज लेट अस से 16, इट इज लेट अस से 18। इट डज नॉट मीन दैट वंस यू इंक्रीज द एफर्ट मोर बाय 4.5 टाइम्स, आपने फिर से 4 टाइम बढ़ा दिया तो ये चीज 18 की वापस से 22 हो जाएगी। Here it became 2 more time, now it became 4 more time। नहीं ऐसा नहीं होगा, उल्टा डिक्रीज कर जाएगा। The next curve will be even more I can say even more closer to this। अगला जो कर्व आएगा वो इसका गैप कम होगा, उसके अगले वाले कर्व का और भी गैप कम होगा, और भी गैप कम होगा, और भी गैप कम होगा। तो धीरे धीरे कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाने से गामा डी का इंक्रीमेंट कम होता रहता है। गामा डी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ये एक ही बार जब आपने एसपीटी से एमपीटी पे लेके आए तो डेफिनेटली जितनी बार बढ़ाओगे, मींस द टाइम इन विच यू आर इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्शन एफर्ट, जितनी बार आपने कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाया उतनी बार आपका गामा डी मैक्स बढ़ेगा और ओएमसी कम होगा। लेकिन वो जो बढ़ने का है ना वो कम होता रहेगा। लाइक लेट अस से राइट नाउ इट इज इंक्रीज बाय 2, नाउ इट विल इंक्रीज बाय 1। अगली बार इंक्रीज होगा ओनली 0.5 से, अगली बार इंक्रीज होगा ओनली 0.25 से, उसके अगली बार ओनली 1.2 से, 0.12 से। मतलब ये हर बार इंक्रीज तो हो रहा है बट द इंक्रीमेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इज वेरी लेस। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। क्लियर? आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। इफ कॉम्पैक्शन एफर्ट इंक्रीजेस गामा डी मैक्स increases, OMC decreases, OMC decreases। But if we increase compaction effort more, compaction effort more, the increment in gamma d max, increment in gamma d max
एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो 16, 18, 19, 19.5, 19.75, 19.92. दिस इज हाउ इट विल बिकम। इंक्रीमेंट क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। बढ़ तो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीज होता जा रहा है। वन मोर थिंग यू कैन सी हियर, जितना इंक्रीमेंट ड्राई साइड में होता है, whatever the increment happens in the dry side, the same increment will not happen in the wet side. This increment, let us say delta gamma d in dry side, and at the same location, if you see the increment in delta gamma d in wet side, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तीसरा, delta gamma d in dry side of optimum is more than delta gamma d in wet side. ये भी एक चीज ऑब्जर्व करने के लायक है। एंड दीज 2 पॉइंट्स इज नोन एज लाइन ऑफ ऑप्टिमम। ये जो 2 पॉइंट मिलाने वाली लाइन है, जितने भी ऑप्टिमम वाले बन जाएंगे, उनको जो मिलाने वाली लाइन है, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ ऑप्टिमम। दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ ऑप्टिमम। दिस व्हाइट कलर लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ ऑप्टिमम। सभी ऑप्टिमम को मिलाने वाले, ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ ऑप्टिमम इज नॉट द लाइन ऑफ व्हाट आई कैन से दिस, ये वो लाइन नहीं है जो अभी हमने पढ़ी थी, लाइन ऑफ सैचुरेशन नहीं है ये। इट इज जस्ट अ लाइन विच इज मैचिंग द ऑप्टिमम ऑफ डिफरेंट कॉम्पैक्टिव एफर्ट, मैचिंग द ऑप्टिमम ऑफ डिफरेंट कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। ये है लाइन ऑफ आप, इसलिए आपका नाम नहीं आ रहा होगा। इट विल गेट कंप्रेस, ये कंप्रेस होती ही जाएगी। इतना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, पानी पीते ही जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा, पीते जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। इट मींस मोर द ड्रिंक यू वाटर, इट मींस गामा डी विल गोइंग टू बी रिड्यूस। अभी हमने देखा, इफ ओएमसी इज मोर गामा डी लेस, ओएमसी इज लेस गामा डी मोर, तो यहाँ तो आपका ओएमसी आते ही रहेगा। सो इफ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस, OMC increases, gamma D max decreases. So these are the curve for some different soil. ये कुछ कर्व हैं अलग अलग सॉइल के लिए। एग्जाम्पल के लिए CH के लिए है, ये इसके लिए है SW के लिए। There is one exception of SP soil. One exception of SP soil. This is the SP soil. Unfortunately, exception क्या है? SP, poorly graded soil. poorly, ये मान लीजिए MI के लिए हो गया, MI, ये आपका वाटर कंटेंट हो गया, ये आपका गामा डी हो गया। poorly graded sand shows minimum value of gamma d max, minimum value of gamma d max। सर इफ सॉइल ऑलरेडी इन प्लास्टिक स्टेट देन सॉइल इज ऑलरेडी इंक्रीज। नहीं, प्लास्टिक स्टेट की बात नहीं की थी आपने, सोचा सही है, लेकिन मैंने आपने मतलब जो भी लिखा है वो सही लिखा है, बट आई हैव नॉट गिवन दैट सॉइल इज प्लास्टिक। आई एम गिविंग द इफ द सॉइल इज ऑफ प्लास्टिक नेचर, इट मींस द फाइन ग्रेन सॉइल। अब जितना ज्यादा फाइन ग्रेन बढ़ेगा, वंस यू इंक्रीज द फाइन ग्रेन डेफिनेटली प्लास्टिक इंक्रीजेस, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस, योर गामा डी मैक्स डिक्रीजेस। यू कैन सी द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर दिस इज अप टू हियर। Here the optimum moisture content is this. Here the optimum moisture content gamma D max is this, and here is this. ठीक है।
unfortunately for SP, poorly graded soil, there is a very norm, or I can say unique phenomena, that it is going to show you the least gamma D max. That's why this should be avoided. Remaining can be used. O'clock, only 3 minutes are left, so we can leave. Thank you so much, take care, bye bye, जय हिंद। किसी बात का बुरा मत माना करो, ठीक है? सब दोस्त हैं, आराम से बैठो, आराम से पढ़ो। चलो, now we can start the compaction of soil. सर नदीम अब्बास को कुछ काम था, उसे कहना है कुछ आपसे। क्या कहना है मुझे? हाँ, वो कह चुके हैं एक बार तो। निरुपमा गुड मॉर्निंग। फिर क्या क्या सर, कैन यू प्लीज आइडिया कब तक कोर्स कंप्लीट होगा? सो अकॉर्डिंग रिवीजन प्लान कर ले। किसका कोर्स कंप्लीट करना है सूरज? सॉइल का पूछ रहे हो या सारा पूछ रहे हो? इसके बाद क्या ही सब्जेक्ट बच गए आपके? स्ट्रक्चर बचा है, सर्वे बचा है और हाईवे बचा है। चलता रहेगा, 2-2 3-3 घंटे चल पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है? ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी कैन स्टार्ट अवर रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम सॉइल कॉम्पैक्शन। हम सॉइल कॉम्पैक्शन का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम आज पूरा करने जा रहे हैं। सभी का स्वागत है क्लास में, मेटीजी में। चलिए शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ लिया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द कॉम्पैक्शन। वी हैव सीन द कॉम्पैक्शन एफर्ट कैन डिक्रीज योर ओएमसी एंड कैन इंक्रीज द गामा डी मैक्स वैल्यू। वी हैव आल्सो सीन, हमने ये भी देखा है कि द प्लास्टिसिटी इफ यू इन द सॉइल इफ यू इंक्रीज देन ओएमसी विल इंक्रीज एंड गामा डी विल गोइंग टू बी रिड्यूस because they are more compressible. And we have also seen that if how the water content is going to affect the compaction. Today we will see the remaining part. Only two parts are left. First of all, what is the effect of compaction over the soil properties and what kind of instrument we are using for compaction. सारा SSA का टेक्निकल आपका रिवीजन तो डेली चलना चाहिए। ऐसा तो मुझे पता नहीं है ना कब खत्म होगा, जब क्लास मिलेगी तभी खत्म होगा। अभी आपका देखो एस्टिमेशन 4-4 घंटे चल रहा है, वेरी सून इट विल बी फिनिश्ड। सॉइल इज गोइंग वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम चल रहा है अपना, 2-2.5 घंटे, मतलब 3 घंटे टाइम है तो हम अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटे निकाल पाते हैं उसमें से, तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग चल गया। बाकी अगर इसको भी सुबह 8 बजे से सॉइल दे दिया होता तो अब तक खत्म हो गया होता है ना। खैर कोई बात नहीं, अभी जैसा टाइम होता है। एनीवेज, तो सबसे पहले हम सीखेंगे इफेक्ट of properties of soil, effect of compaction over properties of soil, effect of compaction over property of soil। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सॉइल की जो कॉम्पैक्शन से अफेक्टेड होगी, आइए देखते हैं। बहुत सारी सर नदीम कल नंबर भी मांग रहा था,
कुछ सीरियस बात है। वो हमारी और नदीम की बात हो गई, नदीम को वापस हमसे हल्की हल्की मोहब्बत हो गई। किसी को पसंद करना बड़ी बात नहीं है ना, मैंने शायद आपको पहले ही बताया होगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे लाइन बोलना, किसी को पसंद करना बड़ी बात नहीं है, किसी को हमेशा पसंद करते रहना बहुत बड़ी बात है ना। होता नहीं है ना जिंदगी में कभी ऐसा। पसंद तो क्या है, कोई भी आ जाता है, चलता फिरता हर इंसान पसंद आता है। एक कोई इंसान जो जिंदगी भर आपको उसी इंटेंसिटी से पसंद आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, उसे मोहब्बत बोलते ना। ठीक है, ये किस लाइन में आ गया मैं अचानक से। सर वाले कैलकुलेशन में हैवी वेट कंपनी 2703 आएगा क्योंकि वहाँ पे PWM 4, अच्छा 4.9 ले लिया था क्या हमने? ओके मैंने 4.5 लिख दिया था, ठीक है 4.9 से कर लेना, देन इट विल बी 2703। आप करेक्ट कर लेना अगर मैंने गलती कर दी है तो। इफ आई हैव डन द मिस्टेक मेक इट करेक्ट, इट इज 4.9 सो इट विल बी 2703। जो भी आएगा 4.5 गुना आता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो लेट अस स्टार्ट द कॉन्सेप्ट हियर। The very first point is what kind of strength supposed to develop। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट आएगा। The very first effect is structure on the structure of soil। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, तो आपको पता है दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स। सो दिस इज व्हाट कॉम्पैक्शन कर्व, ये आपका कॉम्पैक्शन कर्व है। आई विल मेक इट इन ग्रीन कलर और मे बी समथिंग, थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। आई विल मेक इट इन ग्रीन कलर। सो दिस इज व्हाट आवर OMC, ये आपका OMC है, हमको पता है। ये आपका गामा D max है, दैट आल्सो वी नो। वी हैव टू नो दैट इट्स अ ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम एंड इट्स अ वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। We know this that at this point definitely in the beginning you will find the flocculent structure. All the things are randomly arranged, but if you compact something, it means all the things will become mannersful, or I can say in the manners they will sit. It means the flocculent structure will convert into dispersed structure. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये यहाँ पे फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर इस तरह का edge to edge और edge to face combination है, but if I show you here then it will be dispersed structure, So in the wet side of optimum, so structure will convert into flocculent to disperse. In fact, if you increase the, let us say if you are increasing the compaction effort, just imagine if you are increasing the compaction effort, अगर आप compaction effort increase करते हैं तो curve will become like this, because this will become OMC for MPT, modified Proctor test, and this will become gamma D max, that is standard, that is for MPT, modified Proctor test के लिए gamma D max है। In this also if you see अगर मैंने compaction effort बढ़ा दिया, then here also you will find little more dispersed thing। आप यहाँ पे भी थोड़ा सा तमीज पाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे भी जोर से मारा है। I have kept high value of the compaction at this point only, so you will find comparatively dispersed structure over here. Not completely, what I can say, not completely flocculent, but comparatively dispersed. And if you are seeing the wet side of optimum in this side, highly dispersed nature you will find. So in total, what is the meaning? In total, flocculent will convert into dispersed. Even if you increase the compaction effort, then also orientation will be much better at this point. So what I can write, this is let us say A, this is let us say B, this is let us say C, and this is let us say D. So what I can say, A is less oriented. A is less oriented than D because D is more oriented. A is less oriented than B also. ठीक है, then C is highly oriented, और you can say C is highly oriented than D, D से भी highly oriented है। और क्या लिख सकते हैं, बस तीन ही काफी है। D ज्यादा ओरिएंटेड है A से, C ज्यादा, B भी ज्यादा ओरिएंटेड है A से, और C सबसे ज्यादा ओरिएंटेड है। इट इज द मोस्ट ओरिएंटेड थिंग, मोस्ट ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन के बारे में हमने ये बात की, दिस इज रिगार्डिंग ओरिएंटेशन। गुड मॉर्निंग दिव्या, अब आई है वीडियो एंड साउंड। अरे इतना लेट कैसे? क्लियर है ये वाला पॉइंट?
This point is clear for everybody or not? तो स्ट्रक्चर का क्या फर्क पड़ा वो हमें समझ में आ गया. What is happening with the structure that we have come to know. C जो है आपका B से भी ज्यादा, ये भी लिख सकते हो. C is also more oriented than B. It is decreasing. So definitely at dry side of optimum you will find less permeability, but at wet side of optimum this is happening in dry side of optimum. This is happening in dry side of optimum. But in wet side of optimum gamma D decreasing, it means E increase, it means permeability will increase in wet side of optimum. Permeability will increase in wet side of optimum. But there is one more problem. यहाँ पे एक problem है. Problem क्या है? फिर से मैं कर्व बनाने जा रहा हूँ. Again I am making this curve. Here the gamma D is increasing. You can see, you can note down here. ये जब gamma D increase कर रहा है, initially gamma D is increasing, it means comparatively closer state of the solids, so definitely void ratio less, K हो गया कम. Because gamma D क्या होता है? Gamma D क्या होता है? G gamma W divided by 1 plus E. G तो fixed value है, gamma W भी fixed value है, then gamma D will be controlled only by what? Void ratio. अब देखो ध्यान से. Let us say if I take these 2 point, ये dry side का point है, ये वेट साइड का पॉइंट है. बोथ आर शोइंग यू द सेम डेंसिटी. बोथ आर शोइंग यू द सेम डेंसिटी. ये वेट साइड का पॉइंट है एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ ड्राई साइड एंड बोथ आर शोइंग यू द सेम डेंसिटी. तो अगर डेंसिटी सेम है, जी सेम है, गामा डब्ल्यू सेम है, मतलब ई भी सेम है. एट बोथ ऑफ दीज प्लेसेस ई आर सेम, देन नाउ हु विल हैव द मोर परमेबिलिटी. सो एट द सेम डेंसिटी, भाई लॉजिक तो ये बोलता है कि जैसे जैसे गामा डी इंक्रीज करता है ई रिड्यूस करेगा, के रिड्यूस करेगा. मान गया, बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्ड तो यही है. लेकिन अगर मैं डेंसिटी ही सेम कर दूं तो फिर कहां परमिटिविटी ज्यादा होगी? क्योंकि अगर डेंसिटी सेम कर दी मतलब ई सेम हो गया. नाउ हाउ यू विल कंपेयर द परमिटिविटी? नाउ द परमिटिविटी विल बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. हमको पता है कि वेट साइड में स्ट्रक्चर काफी ज्यादा डिस्पर्स होता है, तो डिस्पर्स की परमिटिविटी क्या होती है? कम होती है. तो एट सेम डेंसिटी परमिबिलिटी एट वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम विल बी more than permeability, will be less than permeability of dry side of optimum because of dispersed structure at dry side, at wet side. Because of dispersed structure at wet side. Third, deficiency of water. Deficiency of water will be more in dry side, less in wet side. पानी की कमी कहाँ है? इधर ही तो है. इसके बाद तो पानी OMC के बाद तो lot of water is there. नदीम जी समझ में आया? यहां पानी की कमी है तो पोर वाटर प्रेशर कहां ज्यादा होगा? पोर वाटर प्रेशर कहां ज्यादा होगा? जहां पानी ज्यादा वहां पोर वाटर प्रेशर भी ज्यादा. मोर इन वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम or less in dry side of optimum. So wherever the deficiency of water, जहां पानी की कमी है वहां पानी की डिमांड भी क्या है? ज्यादा है. भाई मेरे पास अगर पानी की कमी है तो मुझे डिमांड भी ज्यादा है. लेट से मेरे घर पे हर 2 दिन में एक बार पानी आता है तो मैं हमेशा पानी के लिए रोता रहूंगा कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो. और जिस दिन पानी आ गया मैं इतना खुश हो जाऊंगा कि मैं जिंदगी के सारे कपड़े एक साथ धो लूंगा. मैं पूरा घर धो लूंगा जिस दिन पानी आ गया, क्योंकि मैंने पानी पहली बार देखा है.
हाँ, यहाँ सप्ताह में एक बार आता है, सडनली आ जाए तो बहुत भयंकर हो जाएगा। इट मीन्स वेर एवर द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर दे डिमांड्स मोर वाटर, इन दैट सेंस दे विल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर से, तो स्वेल कर जाएंगे। तो स्वेलिंग कहाँ ज्यादा आएगी? स्वेलिंग कहाँ ज्यादा आएगी? जहाँ पानी ज्यादा होता है, पानी की कमी ज्यादा होती है। फिफ्थ, स्वेलिंग मोर इन ड्राई साइड, मोर इन ड्राई साइड, लेस इन वेट साइड। क्यों ऐसा है? बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, हेंस इट विल एब्जॉर्ब मोर वाटर, एब्जॉर्ब मोर वाटर। या पानी कमी है, जैसे ही पानी दिखाई देगा सडनली एब्जॉर्ब कर जाएगा। अरे वेट साइड, हाँ सही। देखो सूरज यादव ने बहुत ही लॉजिकल डाउट पूछा है, बहुत अच्छा लगा। सूरज यादव ऐसा डाउट पूछते हो ना तो मजा आता है कि भाई कुछ समझाएं। उन्होंने पूछा है कि सर आपने बताया था कि परमेबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि परमेबिलिटी सैचुरेटेड सॉइल में आती है, तो यहाँ तो आते आते तो सैचुरेशन आ गया, इधर तो आपका सैचुरेशन 100% आ गया, थ्योरेटिकली आया लेकिन आ गया, तो फिर यहाँ तो परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमने यहाँ पे परमेबिलिटी ज्यादा लिखी है। मोर ओवर यहाँ सैचुरेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेबिलिटी इसलिए ज्यादा आ जाती है क्योंकि वॉइड रेशियो आ जाता है। आपको कल लड्डू वाला एग्जांपल याद होगा, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ दैट लड्डू। सो इफ यू अप्लाई मोर घी इन दैट लड्डू, ऑल द पार्टिकल्स विल स्कैटर, सारे पार्टिकल बिखर जाएंगे, तो पानी के साथ में वॉइड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जैसे एक्स्ट्रा, मैंने आपको क्लास का भी एग्जांपल दिया था कि 100 से ऊपर बच्चे आने लगे, मेरे पास शेयर नहीं है, तो दे विल डिस्टर्ब द सॉलिड्स व्हिच आर ओवर देयर। वो और भी ज्यादा उस सॉलिड को डिस्टर्ब करेंगे जो वहां पे है। सॉलिड को धक्का मार के बैठेंगे, फिर धक्का मार के बैठेंगे, फिर धक्का मार के बैठेंगे, तो होगा क्या? सॉलिड की डेंसिटी कम होती जाएगी, तो वॉइड रेशियो बढ़ता रहेगा। बात आपकी सही, सैचुरेशन आया है लेकिन वॉइड रेशियो इतना बढ़ गया है तो अपनी परमेबिलिटी एक्सेस हो गई है। लेकिन जब मैंने यहां पे डेंसिटी ही सेम कर दी, जब डेंसिटी सेम कर दी, अब कैसे परमेबिलिटी के बारे में बात करें? क्योंकि परमेबिलिटी हमने ई के रेस्पेक्ट में बात की और ई मैंने यहां पे सेम कर दिया। अगर मैंने ई ही सेम कर दिया तो अब मैं किसके बेस पे कंपेयर करूंगा? स्ट्रक्चर के बेस पे। मोड ऑफ फेलियर, मोड ऑफ फेलियर, डक्टाइल इन वेट साइड, ब्रिटल इन ड्राई साइड। अब इसको भी समझते हैं, ब्रिटल का क्या मतलब है? ब्रिटल क्यों है ड्राई साइड में और डक्टाइल क्यों है वेट साइड में? बिकॉज इन वेट साइड द वॉइड रेशियो इज इंक्रीजिंग, योर सॉइल इज बिकमिंग काइंड ऑफ ए लूज सॉइल। तो जो भी आपका फेलियर आएगा लूज सॉइल में, कंटिन्यूस फेलियर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। बट इन केस ऑफ डेंस सैंड देयर इज ए पिन पॉइंट फेलियर। डेंस सैंड में वैसे आपको फेल करने में लोड बहुत ज्यादा लगेगा, बट फेल एकदम से हो जाएगा। जैसे कि इस तरह से समझ लो, फेलियर ऐसा होता है डेंस सैंड में, दिस इज अ फेलियर इन केस ऑफ डेंस सैंड एंड दिस इज अ फेलियर इन लूज सैंड। ये लूज सैंड है, ये डेंस सैंड है। In dense sand you require more load to fail, but once that load will achieve, drastically failure will occur. But in loose sand, continuously failure is occurring. इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल दे दूं मैं आपको। What you can take, आप गुड़ ले लो हाथ में, गुड़ समझते हो? गुड़, जैगरी, उसको हाथ में ले लो, उसको दबाओ ऐसे करके। If you press it, it will not easily get break, easily not get break, but press करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ऐसे करके टूट जाएगा। और you can take an example of तिल का लड्डू, जो हम मकर संक्रांति पे बनाते हैं, दैट तिल का लड्डू, दैट तिल का लड्डू विच इज 15 days ओल्ड, जो 15 दिन पुराना है, उसको हाथ में ले लो। ट्राई टू ब्रेक इट, नहीं ब्रेक होगा क्योंकि डेंस है, बहुत हाईली पैक्ड है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट ब्रेक, बट वंस दैट लोड विल बी रीच, ऐसा बिखर जाएगा। बट इफ समथिंग इज लूज, खा के देखो, एकदम ग्रेजुअली उसमें डिक्रीमेंट आएगा। तो उसमें सडन फेलियर नहीं है, ग्रेजुअल फेलियर। सो डक्टाइल फेलियर, ब्रिटल फेलियर। पीएमपी कहां लिखा है? पीडब्ल्यूपी लिखा है। पीएमपी कहां लिखा है? will be less in dry side at low stress, high in wet side at low stress.
पहले इसको लिखो फिर मैं समझाता हूँ। PWP दिव्या, पोर वाटर प्रेशर। इस बात का मतलब यह है कि क्योंकि आपको पता है कि ड्राई साइड में, इन द ड्राई साइड योर स्ट्रक्चर इज फ्लोकुलेंट। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। ध्यान से देखना एक बार। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। इस तरह का ओरिएंटेशन है फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का, इस तरह से। दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन इज ऑफ फ्लोकुलेंट। इट इज जस्ट लाइक ए बीम एंड कॉलम जॉइंट, कि बीम और कॉलम, बीम और कॉलम। तो इफ यू अप्लाई लो स्ट्रेस ओवर इट, अगर आप इस पे लो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, बहुत ही कम लोड, तो ये दबेगा भी नहीं। It will not even press, you cannot compress it. इसलिए बोला कि लो स्ट्रेस पे राइट साइड ऑफ ऑप्टिमम में लेस कंप्रेसिबिलिटी आती है। बट अगर आपने यहाँ पे हाई स्ट्रेस अप्लाई कर दी, जैसे कि मान लो अपने घर में अर्थक्वेक आ गया, वो ऐसे कोलैप्स कर जाएगा। The entire thing will get collapsed drastically. तो ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी आएगी कब? अगर आप हाई स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो। इफ यू अप्लाई द हाई स्ट्रेस ओवर हियर। और उसी का अपोजिट वेट साइड में। उसी का अपोजिट कहाँ है? वेट साइड में। लिख देता हूं। बिकॉज इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग इज बेटर इन फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। वही गुड़ वाली बात आ गई। इफ यू टेक द जैगरी, अप्लाई वेरी स्मॉल स्ट्रेस ओवर देयर, कुछ हिलेगा भी नहीं वो जगह से, इट विल नॉट इवन मूव। बट इफ यू अप्लाई द हाई स्ट्रेस, इट विल ब्रेक एंड बिकम लाइक ए ग्राइंड, मतलब बिल्कुल चूरा हो जाएगा उसका, इट विल बिकम ग्राइंड। हाई वॉल्यूम चेंज विल अकर। तो हाई स्ट्रेस पे बहुत ही हाई वॉल्यूम चेंज आता है इसमें। नंबर पे वो भी लिख सकते हो। 8th श्रिंकेज। श्रिंकेज इज जस्ट अपोजिट टू व्हाट यू हैव रिटन इन द स्वेलिंग। जहां स्वेलिंग आएगी तो वहां श्रिंकेज नहीं आएगा। For everybody, is it clear? Forward, I have given the reason also. मैं चाहता तो बिना रीजन बताए भी आगे बढ़ सकता था कि ऐसा ऐसा होता है, याद कर लो, ठीक है। बट आई हैव गिवन द रीजन बिकॉज वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हमने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटे बड़े तरीके से सभी चीजों को पढ़ लिया है। अब लास्ट टॉपिक है कि कौन सा चीज किसके लिए काम आता है।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉम्पैक्शन और आई कैन से मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। और इसके बाद एक सवाल भी करा दूंगा, उस सवाल से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट लिखिए रोलर। अभी मैं एक टेबल बना देता हूं, उस टेबल से ही सब समझ में आ जाएगा आपको। बेटर टू मेक ए टेबल। द वेरी फर्स्ट इज रोलर। अब इन दिस रोलर देयर आर थ्री टाइप ऑफ रोलर। देयर आर थ्री टाइप ऑफ रोलर। फर्स्ट इज स्मूथ व्हील्ड रोलर। ये जो इसका एक्शन होता है वो प्रेशर एक्शन होता है। प्रेशर एक्शन, प्रेशर एक्शन होता है। इट इज सुटेबल फॉर रॉक, क्रस्ट रॉक, ग्रेवल, सैंड। कुल मिला के कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है। सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, कोर ऑफ अर्थ एंड रोड कंस्ट्रक्शन। सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। ये तो हुआ स्मूथ व्हील्ड रोलर। इसके बाद आता है शीप फुट रोलर। शीप फुट रोलर, इसका जो एक्शन है दैट इज नीडिंग एक्शन। नीडिंग एक्शन। इट इज सुटेबल फॉर क्ले, मतलब कि कोहेजन लेस, कोहेसिव सॉइल के लिए, एंड फॉर व्हाट आई कैन से कोर ऑफ अर्थ डैम। कोर ऑफ अर्थ डैम बनाने में काम आता है ये रोलर। उसके बाद आता है न्यूमैटिक टाइप। न्यूमैटिक टाइप रोलर, इसके पास में दोनों एक्शन अवेलेबल है, प्रेशर प्लस नीडिंग, बोथ एक्शंस आर अवेलेबल। सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि दोनों एक्शन अवेलेबल है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ऑल टाइप ऑफ वर्क, कैसा भी काम करा लो, कैसा भी काम करा लो। चाहे तो आप इससे बेस बनवा लो, सब बेस बनवा लो, बेस, सब बेस, रोड एम्बैंकमेंट, वही मतलब रोड कंस्ट्रक्शन भी आ गया, कोर भी आ गई, रोड एम्बैंकमेंट, एयरफील्ड एक्सेट्रा। तो न्यूमेटिक रोलर आ गया। तो ये तो हो गया रोलर। रोलर के बाद आता है रैमर्स, विच गोइंग टू इम्पार्ट द इम्पैक्ट फोर्स। रैमर्स जो हम अभी लैब में काम किए थे, नंबर ऑफ ब्लोस, रैमर्स। एक्शन इज इम्पैक्ट एक्शन। इम्पैक्ट एक्शन सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ऑल टाइप ऑफ सॉइल। कहाँ यूज आता है? वेर एवर एरिया इज कन्फाइंड, वेर एवर एरिया इज कन्फाइंड। रोलर चलाने जितना एरिया नहीं है, जैसे कि अपना मोल्ड होता है, मोल्ड के अंदर तो रोलर चल नहीं सकता, तो हमने हैमर डाल के काम किया। कहीं पे थिन वॉल्स है, थिन जगह है, मतलब कुछ ऐसा कंजेस्टेड एरिया है, तो वहां आप रोलर की जगह इसको भेज दो। थर्ड इज वाइब्रेटर। थर्ड इज वाइब्रेटर। वाइब्रेटर में वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन सैंड, सुटेबल फॉर सैंड। और क्या करना? एम्बैंकमेंट ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक। ऑयल स्टोरेज टैंक। जो समझने लायक बात है वो बता दूंगा, बाकी सब आपको स्टैंडर्ड यूज दिखा दिए। वो कॉम्पैक्शन एनर्जी वाला सही कर लेना भाई सब लोग। मेक दैट कॉम्पैक्शन एनर्जी करेक्ट। Instead of 4.5, sorry 4.9, we have taken by mistake 4.5. That's why our answer became wrong.
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ बताता हूँ लीडिंग एक्शन क्या होता है। ब्रिक में बता चुका हूँ वैसे तो मैं, हमने ब्रिक पढ़ा था आपको याद हो तो, मैन्युफैक्चरिंग और ब्रिक पढ़ाया था मैंने। इन मैन्युफैक्चरिंग और ब्रिक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस लीडिंग एक्शन बट स्टिल आई विल टेल यू, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो आप भूल गए। एएस वाले कोड के लिए हाई कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए इट इज 4.9, तो यहाँ 4.9 से सॉल्व करोगे इट विल बिकम 2703, इट विल बिकम 2703। जो मैंने कल लिखा, वाइब्रेशन इज सुटेबल फॉर सैंड, वाइब्रेशन इज नॉट सुटेबल फॉर क्ले, बिकॉज वाइब्रेशन अगर डायनेमिक एक्शन, एनी काइंड ऑफ डायनेमिक एक्शन हैपेंस इन क्ले, इट विल डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ क्ले, इसलिए वो वहां पर नहीं करते। ठीक है, रेमर्स मतलब क्या है, फिर से डायनेमिक एक्शन है, बट हम क्या करेंगे, हमेशा रेमर्स को अवॉइड करेंगे क्ले के अंदर। बाकी अगर कहीं कंजेस्टेड एरिया है ना तो वहाँ वाइब्रेशन कर सकते हैं, ना ही आपका रोलर जा सकता है, तो दैट इज ओनली द थिंग इज लेफ्ट। बट स्टिल यस वी शुड नो दैट इफ यू पुट रैमिंग ओवर अ क्ले इट मे डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ क्ले। देन नीडिंग एक्शन क्या होता है, नीडिंग एक्शन का मतलब होता है आटा लगाना। वट एवर द एक्शन यू आर पुटिंग दिस, यू आर पुटिंग दिस ओवर द आटा, जब आप आटा लगाते हो तो ये इस तरह से जो आप करते हो वो नीडिंग एक्शन कहलाता है, मतलब कि जो लम्प्स होते हैं उनको तोड़ने का काम है। सो वंस यू ऐड द वाटर इन द क्ले इट विल बी लम्प्स, सो लम्प्स को तोड़ने का काम को बोलते हैं नीडिंग एक्शन। प्रेशर मतलब कि दबा के उसको छोटा कर देना, यही आपने आटे में पानी डाला और उसको दबा के उसको लगा देते हैं, तो या तो ये प्रेशर एक्शन हो गया, नहीं तो उसको शामिल करो, ऐसे 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 करते रहो। अब ये न्यूमेटिक टाइप का रोलर क्या करता है, ये लिटरली वो काम करता है जो हमारी मम्मी कर रही है, वो उस आटे को प्रेस भी कर रही है और नीड भी कर रही है, हाथ से दबा भी रही है और नीड भी कर रही है। तो एक्चुअली व्हाट द प्रोसेस वी आर अप्लाइंग ड्यूरिंग मेकिंग दैट आटा इज एक्चुअली न्यूमेटिक प्रेशर या न्यूमेटिक थिंग हम कर रहे हैं, तो वो ही चीज है। क्योंकि देखो नीडिंग एक्शन इज सुटेबल फॉर क्ले, प्रेशर एक्शन इज सुटेबल फॉर सैंड एंड ऑल, और यहाँ पे तो सभी दोनों ही प्रेशर लग रहे, तो इसका मतलब ये सभी टाइप की क्ले के लिए सुटेबल है, इसका इससे कुछ भी काम करवा लो आप। And eta A, if gamma D max achieved as 18 kilonewton per meter cube at water content 14%, at water content 14%, इतने से ही समझ जाओगे G is equal to 2.7। कन्फाइंड का मतलब बंधा हुआ एरिया, चारों तरफ से बंधा हुआ है। Na आ जाएगा और इससे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, किससे, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 बाई डब्ल्यू जी बाई एस। ठीक है, तो ये आपको 18 दे रखा है, दिस इज गोइंग टू बी 1.14 इंटू 2.7, ये 2.7 है, ये 10 ले लो, 9.1 लेंगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो यहाँ से Na निकल जाएगा। सिमिलरली दिस इज 18, 1 plus 0.14, 2.7, this is S, this is 2.7 and this is 9.8, 10 ले लेते ना, we are taking 10 over here. So you can find the degree of saturation approximately and air content approximately. कैलकुलेटर में लाया हूँ क्या, yes I got it, 2.7
18 1 plus 0.14 into 2.7 divided by 2.7, तो ये आया 8.18। जिसने भी 9.8 से किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। और ये आ जाएगा 2.7 into 10 divided by 18, -1 inverse 0.8.14 into 2.7. So this comes out to be, S is coming out to be 75.6%। 75.6%, मतलब ये तो एक ऐसी सॉइल निकली, ये तो एक ऐसी सॉइल निकली, इट इज अ सॉइल इन सच ए वे दैट इवन इफ यू सैचुरेटेड बाय 70.6% देन आल्सो इट इज शोइंग यू द गामा डी मैक्स, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें कंप्रेसिबिलिटी है कि ये पानी पिए ही जा रहा है, खत्म ही नहीं कर रहा। 100% कॉम्पैक्शन भी कहाँ आ गया है, 75% सैचुरेशन पे आ गया, और अभी भी 8% एयर वॉइड्स रह गए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत समझदारी से पढ़ना, क्वेश्चन हैज टू बी रीड वेरी केयरफुली। What they are asking? Are they asking percentage air voids or they are asking air content? Percentage air void is this, but air content is what? Air content is what? 1 minus S. That is what? How much? 24.4%. Air content 24.4% है, percentage air voids ये है। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ठीक है, ये तो सिचुएशन आ गई, तो ये बताओ कि असली में इसका गामा डी मैक्स क्या हो सकता है? इसका मतलब ये तो गामा डी मैक्स नहीं है, it is not, it is practical gamma d max. What can be the theoretical gamma d max? What can be the theoretical gamma d max? जहां पे वो लाइन ऑफ ऑप्टिमम आएगा, जहां पे वो लाइन ऑफ ऑप्टिमम आएगा, तो आप बता सकते हो कि भाई theoretical gamma d max वो होगा जहां पे ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब s will become equal to 1 and eta a भी क्या हो गया, 0 हो गया, eta a भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये देखते हैं कि 2.7 into 10 divided by 1 plus 0.14 into 2.7, ये वैल्यू जब आ गई, इसका मतलब आपका थ्योरेटिकल वाला अचीव हो गया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं अचीव करना, तो ये हो गया 19.59। तो आप सोचो, जो गामा डी मैक्स 19.59 हो सकता है, वो गामा डी मैक्स अभी आपका कितना आ रहा है, 18 ही आ रहा है, तो आप फुल्ली कॉम्पैक्टेड हो ही नहीं। आप मुझे यहाँ से ये भी बता सकते हो कि व्हाट इज योर रिलेटिव कॉम्पैक्शन राइट नाउ, आप रिलेटिवली कितने कॉम्पैक्टेड हो? भाई मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हो राइट नाउ वेयर यू आर एग्जिस्टिंग, तो यू आर एग्जिस्टिंग हियर, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी आर एग्जिस्टिंग एट 91.88%। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि आरसी की वैल्यू 80% से 100% के बीच में आती है, तो देख लो, मतलब राइट नाउ वी आर 91.88% कॉम्पैक्टेड एज पर वॉट एवर द कॉम्पैक्शन इज रिक्वायर्ड। जितना होना चाहिए उससे 91% पे आ रहे हैं। अगर किसी ने 9.81 से सॉल्व किया इसको, तो उसका अकॉर्डिंगली आंसर आ गया होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, दैट एंटायर स्टोरी यू हैव टू लिसन। मोर ओवर, आप मुझे ये भी बता सकते हो कि जब फुल कॉम्पैक्शन हो जाएगा तो वॉइड रेशियो कितना होगा? यही तो वॉइड रेशियो है, दिस इज द ई मिनिमम। ये फुल कॉम्पैक्शन का वॉइड रेशियो है, दैट इज द ई मिनिमम। तो ये देखो ई मिनिमम कितना आ रहा है, W इंटू जी 0.14 इंटू 2.7, ये 0.378 है, 0.378 है। राइट नाउ जब आपका सिचुएशन है, इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द वॉइड रेशियो? दिस इज द वॉइड रेशियो, ये आपके सिचुएशन का वॉइड रेशियो है। व्हाट इज द वॉइड रेशियो? 0.14 इंटू 2.7, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी आई है? 75.6% आई है। तो ये 0.14 2.7.756, ये आया 0.5। तो खुद सोचो, आप खुद ही सोच लो, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि अभी आपका वॉइड रेशियो 0.5 है, आपको वॉइड रेशियो कहाँ पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है? 0.378 पे पहुंचाना है, 0.378 पे पहुंचाना है। तो डेफिनेटली आपका कॉम्पैक्शन बहुत बाकी है अभी, योर कॉम्पैक्शन इज लेफ्ट। क्लियर है? सो दिस इज द वॉइड रेशियो इन योर सिचुएशन, दिस इज द वॉइड रेशियो theoretically should be achieved, जो अचीव होगा नहीं, लेकिन theoretically इतना होना चाहिए। So we are at 91.88% of the relatively compacted, हम इतना relatively compact हो चुके हैं, मतलब जितना होना चाहिए, और अभी हम यहाँ exist कर रहे हैं। Is that clear for everyone or not?